بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 8 آج پڑھیں گے، اور سبق نمبر 8 کو وقد اجیب عن الاشکالین سے لے کر من قتل قتیلا فلہ صلبہ تک پڑھیں گے۔ عبارت کی تشریح سے پہلے سبق کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ آج کے سبق میں ہم 2 اشکال پڑھیں گے۔ 2 اشکالوں کا ایک مصنف ملا جامی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے، وہ پڑھیں گے۔ پھر ملا جامی رحمہ اللہ کے جواب پر ایک اعتراض وارد ہوگا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ ضمائر جیسی چیزوں کی وضع وہ تو مفہوم کلی کے مقابلے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی وضع عام ہوتی ہیں لیکن موضوع لہو خاص ہوتی ہیں۔ پھر ان کا جواب ملا جامی رحمہ اللہ نے خود نہیں دیا، بلکہ دوسرے شارحین نے جواب دیا ہے۔ پھر آپ 2 مذہب پڑھیں گے کہ ضمائر کے حوالے سے متقدمین کا مذہب پڑھیں گے، متاخرین کا۔ پھر اس کے بعد مفرد کا لفظ آئے گا، الکلمۃ وضع لمعنی مفردین، کہ مفردین اس کو پڑھ لیں یا مفردون پڑھ لیں یا مفردن پڑھنا چاہیے۔ تو مفردین کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اس کی جری حالت میں یعنی مجرور مفردین اگر مجرور پڑھیں گے تو پھر ترکیبی حیثیت ان کی کیا ہوگی۔ تو پھر یہ معنی بنے گا، معنی کے لیے صفت لمعنن، کہ یہ معنی کے لیے صفت بنے گا۔ اور پھر اس وقت لمعنن مفردن کا مطلب کیا ہوگا کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہ ہو، یہ ان کا مطلب ہوگا۔ پھر یہ بات سے اس طرف اشارہ ہوگا کہ یہ بات تو وہم ڈال رہی ہے کہ لفظ جو ہیں جو موضوع ہیں ایسے معنی کے لیے جو متصف ہیں افراد اور ترکیب کے ساتھ قبل الوضع، یعنی معنی جو ہے متصف ہیں افراد اور ترکیب کے ساتھ قبل الوضع، یہ وہم پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کا وہم کا جواب آپ پڑھیں گے کہ یہاں پر یہ مجازن کہہ دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں من قتل قتیلا فلہ صلبہ، ایک زندہ شخص کو مقتول قرار دے دیا، تو یہاں پر بھی مجازن اس کو ایسا کہہ دیا گیا۔ تو یہ آپ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اب عبارت کی طرف دیکھ لیجئے۔ وقد اجیب عن الاشکالین بانہ لیس ها هنا لفظ وضع بازاء لفظ آخر مفردا کان او مرکبا، کہ تحقیق جواب دیا گیا ہے 2 اشکالوں کا بعین طور پر کہ نہیں ہے ایسا کوئی لفظ وضع جس کے وضع کیا گیا ہو بازاء لفظ آخر، دوسرے لفظ کے مقابلے میں، چاہے وہ لفظ مفرد ہو یا مرکب، بل بازاء مفہوم کلی افرادہ الفاظ، بلکہ وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے مقابلے میں جن کے افراد الفاظ ہیں، کلفظۃ الاسم والفعل والحرف والخبر والجملۃ وغیرہا، جس طرح کہ لفظ اسم، لفظ فعل، لفظ حرف، لفظ خبر، لفظ جملہ اور اس کے علاوہ۔ ولا يخفى عليك، اور یہ بات آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے کہ ان هذا الحکم منقوض، کہ یہ حکم ٹوٹا ہوا ہے بامثال الضمائر الراجعۃ الی الفاظ مخصوصۃ مفردۃ او مرکبۃ، ان ضمائر جیسی چیزوں کے ساتھ جو لوٹتی ہیں الفاظ مخصوصہ کی طرف، چاہے وہ الفاظ مفرد ہو یا مرکب۔ فإن الوضع فيها وإن كان عاما، اگرچہ وضع ان میں عام ہے، لیکن الموضوع له خاص، لیکن ان کا موضوع له خاص ہے۔ فليس هناك مفہوم کلی، تو یہاں پر مفہوم کلی نہیں ہے۔ هو الموضوع له فی الحقیقت، جو لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہو حقیقت میں۔ مفرد وهو اما مجرور، مفردن پڑھیں گے، مفرد کے لفظ کو پڑھیں گے یا تو مجرور یعنی مفردن پڑھیں گے، علی انہ صفت لمعنن، تو پھر اس صورت میں اس بنا پر کہ یہ صفت بنے گا لمعنن کے لیے۔ ومعناہ حینئذ، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ ما لمعنن مفردن وہ ہیں لا یدل جزء لفظہ علی جزئہ، کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ وفیہ انہ یوہم، اور یہ بات وہم ڈالتی ہے کہ ان اللفظ موضوع، کہ لفظ موضوع ہے للمعنی المتصف، ایسے معنی کے لیے جو متصف ہیں بالافراد والترکیب، افراد اور ترکیب کے ساتھ، قبل الوضع، وضع سے پہلے۔ ولیس الامر کذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فإن اتصاف المعنی بالافراد والترکیب انما هو بعد الوضع، کہ معنی کا متصف ہونا افراد کے ساتھ، افراد اور ترکیب کے ساتھ، یہ تو وضع کے بعد ہوتا ہے۔ فَيَنبَغِي أَن يُرْتَكَبَ فِيهِ تَجَوُّزٌ، پس ضروری ہے کہ ارتکاب کیا جائے اس میں مجاز کا، کما یرتکب
कमा युर्तकबु फी मिस्ल मन कतला कतीलन, जिस तरह के इर्तिकाब किया गया है मन कतला कतीलन के मिसाल में। फ़इन कुल्ता कद वुज़िअ बाज़ुल अल्फ़ाज़ बिइज़ाइ बअज़िन आख़र फ़कैफ़ यस्दुक़ु अलैहि अन्नहु वुज़िअ लिमअनन। फ़इन कुल्ता कद वुज़िअ बाज़ुल कलिमातिल मुफ़रदति बिइज़ाइल अल्फ़ाज़िल मुरक्कबति कलफ़्ज़िल जुमलति वल ख़बरि फ़कैफ़ यकूनु मौज़ूअन लिमुफ़रदिन। ये असल में दो इश्कलात हैं जो हमने पिछले सबक में पढ़े हैं। तो इसका एक जवाब मुल्ला जामी रहमहुल्लाह ने दिया है, वक़द उजीबा अनिल इश्कालैन से। जवाब ये दिया गया है कि हम ये तस्लीम ही नहीं करते कि किसी लफ्ज़ की वज़ा लफ्ज़ के लिए हो, चाहे मुफरद हो या मुरक्कब, बल्कि लफ्ज़ की वज़ा मफ़हूम कुल्ली के लिए होती हैं। अलबत्ता इस मफ़हूम कुल्ली के अफराद होते हैं और वो अफराद अल्फाज होते हैं। मसलन इसम, फ़ेल, हरफ और जुमला, ये सब इसी कबील से हैं। इसम की तारीफ, इसम वो है जो अपने माने पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी न पाया जाए। ये एक मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इनके अफराद हैं ज़ैद, अमर, बकर। फ़ेल वो है जो अपने माने पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। ये एक मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इनके अफराद ज़रबा, नसरा और आलिमा हैं। हरफ की तारीफ, हरफ वो हैं जो अपने माने पर दलालत न करे और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी न पाया जाए। ये एक मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इनके अफराद मेन, एला, हत्ता हैं। जुमला किसे कहते हैं? जुमला जिसमें सिदक और किज़ब का इस्तेमाल हो। ये एक मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इनके अफराद ज़ैदुन क़ाइमुन, क़ाम ज़ैदुन, ज़ैदुन आलिमुन, ये अफराद हैं। वक़द उजीबा अनिल इश्कालैन के तहक़ीक़ जवाब दिया गया है दो इश्कालों का, बिअन्नहु लैसा हाहुना लफ्ज़ुन, कि ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि जो वज़ा किया गया हो बिइज़ाइ लफ्ज़िन आख़र मुफ़रदन कान औ मुरक्कबन, के दूसरे लफ्ज़ के मुकाबले में वज़ा किया गया हो, चाहे वो लफ्ज़ मुफ़रद हो या मुरक्कब। बल बिइज़ाइ मफ़हूमिन कुल्लिय्यन अफ़रादुहु अल्फ़ाज़ुन, बल्कि लफ्ज़ वज़ा किया गया है मफ़हूम कुल्ली के मुकाबले में जिनके अफराद अल्फाज हैं, जिस तरह के लफ्ज़ इसम, लफ्ज़ फ़ेल, लफ्ज़ हरफ, लफ्ज़ ख़बर, लफ्ज़ जुमला और इसके अलावा। फिर इस जवाब पर इश्काल हो रहा है वला यख़्फ़ा अलैका से, कि ये कहना कि लफ्ज़ की वज़ा लफ्ज़ के लिए नहीं होती बल्कि मफ़हूम कुल्ली के लिए होती हैं, ये हुक्म, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हुक्म ये ज़मीर जैसी चीज़ों पर सादिक नहीं आ रहा, क्योंकि इनमें वज़ा अगरचे आम है लेकिन मौज़ूलहु इनका ख़ास है। यानी इनकी वज़ा मखसूस चीज़ों के लिए होती हैं और वो सब अल्फाज हैं, ख्वाह मुफरद हो या मुरक्कब। मफ़हूम कुल्ली के लिए इनकी वज़ा नहीं है। तो इसका मुल्ला जामी रहमहुल्लाह ने खुद तो जवाब नहीं दिया, दूसरे शारिखीन ने इसका जवाब दिया है। असल में ज़माइर के हवाले से दो मज़हब हैं, एक मुतक़द्दिमीन का और एक मुताख़िरीन का। मुतक़द्दिमीन के नज़दीक ज़माइर की वज़ा मफ़हूम कुल्ली के लिए है, अलबत्ता इनका इस्तेमाल जुज़ियात मखसूसा में होता है, और मुताख़िरीन के नज़दीक ज़माइर की वज़ा जुज़ियात ही के लिए है। मसलन हुआ, तो ये हुआ जो है इनकी वज़ा जो है मुफ़रद, मुज़क्कर और जिसका जिक्र पहले हो चुका हो उसके लिए है। तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने ज़ैद रास्ते में से गुजर गया और आपने कहा हुआ ज़ैदुन के वो ज़ैद था, तो अभी ज़ैद मुफ़रद भी है, मुज़क्कर भी है और इसका जिक्र पहले हो चुका भी है। तो अभी हुआ जो है सिर्फ ज़ैद पर ही सादिक आ रहा है। तो क्या पता चला कि इसकी वज़ा आम है लेकिन इसका मौज़ूलहु ख़ास है। इसी तरह हाज़ा है, तो हाज़ा इसमें इशारा, इसकी वज़ा मुफ़रद, मुज़क्कर, मुबसर के लिए है। तो ये किसी पर भी सादिक आ सकता है, अमर पर भी सादिक आ सकता है, बकर के लिए भी आप कह सकते हैं कि हाज़ा बकरुन। लेकिन आपके सामने अचानक बकर आ गया और आपने फौरन कहा हाज़ा बकरुन, के ये बकर हैं, तो अभी हाज़ा का जो मौज़ूलहु है वो बकर ही है। तो मालूम हुआ कि अस्माए इशारात, मौसूलात और ज़माइर इनकी वज़ा आम है लेकिन इनका मौज़ूलहु ख़ास है। वला यख़्फ़ा अलैका अन्ना हाज़ल हुक्म मनक़ूदुन बिअम्साल ज़माइर राजिअति इला अल्फ़ाज़िन मख़सूसतिन
मुफरदतिन और मुरक्कबतिन, कि ये बात आपके ऊपर मख्फी नहीं है कि ये हुक्म टूट गया है, टूटा हुआ है ज़मायर जैसी चीज़ों के साथ, और वो ज़मायर जो लौटती हैं इला अल्फाज मखसूसतिन, मखसूस अल्फाज की तरफ, और चाहे वो अल्फाज मुफरद हो या मुरक्कब। फ़इन वज़अ फ़ीहि व इन कान आमन, अगरचे इनमें वज़अ आम है, लाकिन मौज़ू लहु खासन, लेकिन इनका मौज़ू लहु खास है। फ़लैसा हुनाका मफ़हूमुन कुल्लियन, तो यहाँ पर मफ़हूम कुल्ली नहीं है। हुवल मौज़ू लहु फ़िल हकीकत, कि जिसके लिए लफ्ज़ हकीकत में वज़अ हो। तो इसका जवाब आपने पढ़ लिया है कि मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन के नज़दीक अलग अलग उनके मज़ाहिब हैं, ज़मायर के हवाले से और अस्माए अशरात मौसूलात के हवाले से। और आपकी आसानी के लिए हमने आगे लिख भी दिया है। मौज़ू लहू के एतबार से वज़ा के अक़साम, वज़ा की 4 अक़साम हैं। नंबर 1 वज़ा ख़ास, मौज़ू लहू भी ख़ास, जिस तरह के ज़ैद। वज़ा आम, मौज़ू लहू आम, जिस तरह के मुश्तक़ात मज़दर से जो मुश्तक़ात होते हैं, ये सब के सब आलिमुन, काइमुन और कारिउन, ये सब के सब क्या है, ये इनका वज़ा आम है और मौज़ू लहू भी आम। वज़ा ख़ास, मौज़ू लहू आम, ये नहीं पाई जाती ये किस्म। वज़ा आम, मौज़ू लहू ख़ास, जिस तरह के मुज़मरात, मौसूलात, अस्माए इशारात। तो ये आपके आसानी के लिए हमने दोबारा इनका जिक्र कर दिया है। मुफ़रदिन व हुवा इम्मा मजरूरन, मुफ़रद का लफ्ज़ या तो मजरूर होगा या मंसूब होगा या मरफू होगा। अगर इनको मजरूर पढ़ते हैं, अला अन्नहु सिफ़तुन लिमानन, फिर ये सिफत बनेगा लिमानन के लिए। व माना वहीन ऐज़िन, तो इस वक्त इसका माना होगा माँ के माना वो है ला यदुल्लु जुज़ लफ्ज़िही अला जुज़इही। मुफ़रद का माना ये होगा कि माना मुफ़रद वो होता है कि जिसके लफ्ज़ का जुज़ दलालत न करे माने की जुज़ पर। वफ़ी है अन्नहु युहिम अन्न लफ्ज़ मौज़ूउन, ये बात जो है ये जो हमने यहाँ पढ़ी है कि अन्नहु सिफ़तुन लिमाना माना वहीन ऐज़िन मा ला यदुल्लु जुज़्उ लफ्ज़िही अला जुज़इही, ये वहम पैदा करती है। इससे वहम पैदा ये होता है कि माना वज़ा से पहले अफराद और तरकीब के साथ मुत्तसिफ होता है, हालांकि ऐसा नहीं है, इसलिए कि माना का इत्तिसाफ इफराद और तरकीब के साथ वज़ा के बाद होता है। जैसे कि हदीस में मजाजन गैर मकतूल को मायकून के एतबार से मकतूल करार दिया गया। हदीस में आता है मन कतल कतीलन, कतील मकतूल के माने में, मन कतल कतीलन फलहू सलबहू, कि जिसने कत्ल किया मकतूल को तो उसके लिए उसके कातिल को उसका सामान मिलेगा। तो यहां पर जिंदा शख्स को मकतूल कह दिया गया, तो यह मजाजन है। इसी तरह मुफरद में भी मजाज का एतबार करना जरूरी है। वफ़ी है अन्नहु युहिमु अन्न लफ्ज़ मौज़ूअन लिमान मुत्तसिफ़ बिल इफ़राद व तरकीब क़ब्ल अल वज़ा, तो ये बात वहम डालती है कि लफ्ज़ मौज़ू है वो ऐसे माने के लिए जो मुत्तसिफ़ इफ़राद और तरकीब के साथ वज़ा से पहले। वलैसल अम्रु कज़ालिक, हालांकि बात ऐसी नहीं है। फ़इन्ना इत्तिसाफ़ अल माना बिल इफ़राद व तरकीब इन्नमा हुवा बअद अल वज़अ, के माने का मुत्तसिफ़ होना इफ़राद और तरकीब के साथ ये तो वज़ा के बाद होता है। फ़यंबग़ी अन युर्तकब फ़ीहि तजव्वुज़ुन, बस ज़रूरी है, यंबग़ी का माना यहाँ पर ज़रूरी करेंगे कि ज़रूरी है कि इर्तिकाब किया जाए इसमें मजाज का। कमा युर्तकबु फ़ीहि फ़ी मिस्ले मन क़तल क़तीलन, कमा युर्तकबु फ़ी मिस्ले मन क़तल क़तीलन, के जिस तरह का इर्तिकाब किया गया है इस हदीस में मन क़तल क़तीलन। फलहू सलबहू, यहाँ पर फलहू सलबहू का जिक्र नहीं है, दूसरे नुस्खों में फलहू सलबहू का भी जिक्र है। मुफरद कैसे कहते हैं? लफ्ज़ के जुज़ से माने के जुज़ पर दलालत न हो, इसको मुफरद कहते हैं। मसलन ज़ैद की ज़ा ज़ैद के तशख़्ख़ुस पर दलालत नहीं कर रहा, इस तरह या और इस तरह दाल भी। मुरक्कब कैसे कहते हैं? लफ्ज़ का जुज़ से माने के जुज़ पर दलालत हो। मसलन ज़ुहर की नमाज, तो ज़ुहर का अपना माना है, एक वक्त मुअय्यन को कहते हैं, और नमाज का अपना माना है कि एक ख़ास किस्म की इबादत है। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद की दलालत ज़ैद पर है और क़ाइमुन की दलालत ज़ैद के कड़े होने पर है, तो ये मुरक्कब है। आज जो कुछ हमने पढ़ा है इसका खुलासा फिर समाअत कीजिए कि हमने 2 इश्कालात पढ़े, फिर उसका मौला जामी रहमहुल्लाह ने एक ही जवाब दिया, फिर उसी जवाब पर फिर एतराज़ हुआ, और फिर उसका जवाब जो है अल्लामा जामी रहमहुल्लाह ने ख़ुद नहीं दिया बल्कि दूसरे शारिखीन ने दिया। और सवाल ये था कि आसमाए जो ज़मायर हैं इनकी वज़ा
عام ہیں لیکن ان کا موضوع لہو خاص ہے، تو یہ مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دوسرے شارحین نے دیا، جس میں دو مذاہب تھے، متقدمین اور متاخرین کا۔ متقدمین کے نزدیک ضمائر اسماء اشارات موصولات یہ وضع ہیں مفہوم کلی کے لیے، اور ان کا استعمال جزیات میں ہوتا ہے، اور متاخرین کے نزدیک ان کی وضع جزیات ہی کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد مفردن، مفردن کے بارے میں پڑھا کہ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردین بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک حالت پڑھی مفردن کہ مجرور ہو تو پھر ترکیب میں کیا واقع ہو سکتا ہے، تو ترکیب میں لمانن کے لیے صفت بنا، پھر معنی اس پر ایک وہم کا اظہار کیا گیا کہ یہ تو وہم پیدا ہو رہے ہیں کہ معنی جو ہے قبل الوضع افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، تو اس کا پھر یہ جواب دیا گیا کہ یہاں پر مجازی ان کو کہا گیا ہے، جس طرح کہ حدیث میں من قتل قتیلا فلہ صلب کہا گیا ہے کہ ایک زندہ شخص کو مقتول قرار دیا ہے، تو وہ مجازن ہے، تو یہاں پر بھی مجازن ہی ان کو یہ کہا گیا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک چند سوالات بھی ہم نے تحریر کر دی ہیں، ان کے جوابات آپ نے خود تحریر کرنے ہیں۔ سوال، وضع کے بے اعتبار موضوع لہو کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ وضع کے بے اعتبار موضوع لہو کے وہ کون سی قسم ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے؟ نمبر 3، لفظ مفرد کو اگر مجرور پڑھیں گے تو لفظ مفرد ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ آج کا سبق ہم نے وقت اجیبہ عن الاشکالین سے لے کر من قتل قتیلا فلہ صلبہ تک ہم نے پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔